गुड मॉर्निंग एवरीवन। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम 13 ग्रुप की बात कर रहे थे और वो ग्रुप आपका कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको बोला था कि आप इसके यूजेस पढ़ के आना, तो केवल आज हम इसका लास्ट टॉपिक करते हैं, यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स। बोरॉन बीइंग एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, आपने पीछे पढ़ी है वाली बात, low density and very low electrical conductivity, finds many application. Boron fibers are used in making bulletproof vest and light composite material for aircraft. The boron 10 isotope has high ability to absorb neutrons and therefore metals borides are used in nuclear industry as protective shields and control rods. The main industrial application of borax and boric acid are in the manufacture of heat resistant glasses. Pyrex के जो ग्लास होते हैं, glass wool and fiber glass. Borax is also used as a flux for soldering metals for heat, stretch and stain resistant glazed coating to earthenwares and as constituent of medicinal soap. An aqueous solution of ऑर्थोबोरिक एसिड जनरली यूज्ड एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक, मतलब जिसे हम लाल दवाई बोलते हैं, आई थिंक उस नाम से फेमस है. एल्यूमिनियम इज ए ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इट हैज़ ए हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी on a weight to weight basis. The electrical conductivity of aluminium is twice that of copper. Aluminium is used extensively in industry and everyday life. It forms alloy of copper, manganese, magnesium, silicon and zinc. Aluminium and its alloy can be given shape of pipe, tubes, rod, wires, plates or foils and therefore find use in पैकिंग utensils मेकिंग कंस्ट्रक्शन एरोप्लेन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री. मतलब ये सब तो आप जनरल लाइफ में आपने देखा हुआ भी एल्यूमिनियम का केस, और इसमें समझाने जैसा तो ऐसा कुछ नहीं है. आपको पता है एल्यूमिनियम के वायर यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम की शीट यूज़ होती है, ठीक है. द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस इज नाउ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर. अब बंद हो गए क्योंकि थोड़ा टॉक्सिक नेचर शो कर देते हैं इस वजह से. तो यहाँ तक आपका 13 ग्रुप कम्प्लीटली आपका ओवर हो चुका है, ठीक है. फिर मैंने आपसे ये बोला था कि आप 14 ग्रुप थोड़ा सा पढ़ के आना, क्योंकि आपको इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी 13 ग्रुप के. आपको सेम हेडिंग्स दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है. केवल केस क्या अलग होगा कि इसमें आपके एलिमेंट्स अलग रहेंगे, वरना हेडिंग्स आपकी सेम रहेंगी कुछ. तो अब स्टार्ट करता है 14 ग्रुप जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं. कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14. कार्बन इज द 17th most abundant element by mass in the earth crust. It is widely distributed in nature in free as well as in the combined state. आपको पता है कि कार्बन तो पूरी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हर एक कंपाउंड आपका कार्बन से ही बना हुआ है. इन केमिकल स्टेट इट इज़ अवेलेबल एज कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड. येलोट्रोप्स हैं, फेमस है कार्बन के. हाउएवर इन कंबाइंड स्टेट इट इज़ प्रेजेंट एज मेटल कार्बोनेट्स, CO3 वाली जो फॉर्म होती है Na2CO3, K2CO3. हाइड्रोजन वो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जैसे आपके मीथेन, ईथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% in air. One can emphatically say that carbon is the most versatile element in the world. Its combination with other elements such as dihydrogen H2,
dioxygen O2, chlorine Cl2 and sulfur provides an astonishing array of materials ranging from living tissues to drugs and plastics. Organic chemistry is devoted to carbon containing compounds. It is an essential constituent of all living organisms. Naturally occurring carbon contains two stable isotopes, carbon 12 and carbon 13. In addition to these, third isotope carbon 14 is also present. It is a radioactive isotope with half life 5770 years and used for radiocarbon dating. Silicon is the second 27.7% by mass most abundant element on the earth crust and is present in nature in the form of silica SiO2 and silicate SiO4-. Silicon is very most important components of ceramic, glass and cement. जो आप अपनी केमिस्ट्री लैब में जो आप फ्लास्क देखते हैं तो वो आपके बोरोसिलिकेट के बने होते हैं. जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेस. टिन अकर्स मेनली एज सेरिट्राइट SnO2 and lead as galena or lead sulfide. Ultra pure form of germanium and silicon are used to make transistor and semiconductor device. आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आराम से पढ़ाऊँ क्योंकि काफ़ी बार स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाती है इस वजह से. The important atomic and physical properties of the group 14 elements along with their electronic configuration are given in table. Some of atomic physical and chemical properties are discussed below. तो अभी तक आपने जनरली ऊपर 14 ग्रुप के आपने एलिमेंट पढ़े हैं, ठीक है. उसमें आपने मेनली फिर उनकी अकरेंस पढ़ी है और उनके कंपाउंड्स पढ़े हैं, कार्बन और सिलिकॉन मेनली हैं. उसके बाद जर्मेनियम और टिन और लेड का केवल एक पॉइंट ही आपके पास, ठीक है, ध्यान रखेंगे. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जब आपने 13 ग्रुप पढ़ा है तो आपने उसमें पी हमेशा 1 की फॉर्म में पढ़ा है कि पी पे हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो जब आप 13 के बाद नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं तो आपका एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे P2 हो जाएगा, ठीक है. लिखा हुआ है द वैलेंसी shell electronic configuration of these elements is NH2 NP2. The inner core of the electronic configuration of element in this group also differs. Next heading है covalent radius. There is a considerable increase in covalent radius from carbon to silicon, क्योंकि वहाँ पे उनका atomic size भी तो increase हो रहा है. Therefore, from silicon to lead a small increase in radius is observed. मतलब इंक्रीज हो रहा है पर स्मॉल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. इतना फास्टली जितना कार्बन और सिलिकॉन में हो रहा था उतना नहीं है. दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर्स. ये वाली बात पीछे भी आई थी. क्या होता है कि डी और एफ एलिमेंट्स जो है आपके, उनकी प्रेजेंस की वजह से इंक्रीमेंट बहुत तेजी से नहीं हो पाता. होता तो है पर आराम से. नेक्स्ट आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी. सेम इसने कहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 members is higher than the corresponding members of group 13. The influence of inner core electrons is visible here also. In general, the ionization enthalpy decrease down the group, क्योंकि मेटल्स आने शुरू हो जाते हैं. Small decrease in delta H from silicon to germanium to tin and slightly increase in from tin to lead is the consequence of poor shielding effect. सेम बात आपने पीछे पढ़ी थी, सेम बात आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं. Poor shielding effect of intervening d and f orbitals and increase in size of the atom. समझाने जैसा
इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि आप पीछे ऑलरेडी ये बात आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट द सेम। ओके, फिर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आई हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन एंड सिलिकॉन आपका नॉन मेटल होता है, जर्मेनियम आपका मेटलोइड होता है और टिन और लेड आपका मेटल्स होते हैं। ये फिर आपको टेबल शो की हुई है, सेम जैसे पीछे थी। आपको पांचों एलिमेंट याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये 3 चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। देख लिया। फिर नेक्स्ट ये बात आपको बताई हुई है, ठीक है, मेटल्स वाली। फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट एडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। पीछे भी आपकी सेम ही एडिंग थी, वहाँ पे बस +3 अगर आपके याद हो तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी स्टेबल थी। द ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सही बात है, जब आप कार्बन 6 का लिखते हैं तो आप 2 4 लिखते हैं ना, जब आप 14 सिलिकॉन का लिखते हैं 2 8 4 लिखते हैं आप। The common oxidation states exhibited by these elements are +4 and +2. Carbon also exhibits negative oxidation states since the sum of first 4 ionization enthalpy is very high. Compounds in +4 oxidation state are generally covalent in nature. In heavier member, the tendency to show +2 oxidation state increase in the sequence germanium, tin and lead. It is due to inability of NS2 electrons of valency shell to participate in the bonding. नहीं कर पाते। The relative stabilities of these 2 oxidation state vary down the group. Carbon and silicon mostly show +4 oxidation state. Germanium forms stable compounds in +4 state and only few compounds in +2 states. Tin forms compounds in both oxidation state. Sn in +2 state in a reducing agent. Lead compound in +2 state are stable and in +4 state are strong oxidizing agents. In tetravalent state, the number of electrons around the central atom is a molecule. Carbon in CCl4 की फॉर्म आपने देखी है, is 8. Being electron precise molecules, they are normally not expected to act as electron acceptor or electron donor species, although carbon cannot exceed its covalency more than 4. ये तो आपको पता है कि 4 से ज़्यादा शो नहीं करता। अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन डू सो, ये वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज़ तो पढ़ी हुई है कि हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है डिफर होता है सबसे, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। कार्बन के पास नहीं होता और उन सब के पास होता है। ड्यू टू दिस देयर हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर फ्रॉम डोनर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास SiF4-2 GCl6-2 SnOH whole 6-2 exist where the hybridization of the central atom is sp3d2। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कार्बन ऐसे कंपाउंड शो नहीं करता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जो आगे सिलिकॉन जर्मेनियम है आपके, उनके पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से वो ऐसे कंपाउंड शो करते हैं। तो बच्चों, स्टूडेंट, आपको केवल यहाँ तक का काम कवर करना है और आगे का जो भी पोर्शन है वो पीछे जैसा है, केवल आपको वहाँ पे एलिमेंट चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज होगी, आपका वो काम जनरली आपको पढ़ के आना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।